Hi girlies, I am Vibha. I have not been posting often for like a few months because I have really been studying, and uske alawa I have also been playing games. I don't study all the time, but still I've been studying like quite a lot, and उस वजह से I haven't been very regular with posting. But आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है क्योंकि आज मैंने स्कूल से छुट्टी ली है, इसलिए today I'm going to record this video in which I'm going to be spilling tea. Okay, so this is a story time video. I have decided to call my story time video tea spilling sessions because it just feels much more natural. And all the time when I talk to my friends and I tell my friends like gossip and stuff, मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि guys I have tea, so we're just gonna call this tea spilling sessions. Okay, so this tea, this is something which is very you can say sensitive मामला है. सुनने में बहुत बचकानी सी स्टोरी लगेगी, but it has a huge importance in my life. Okay, so this was when I was in 8th grade. I was a 13-year-old. And 13-year-olds, they're stupid. They are stupid. And me as a 13-year-old, I was even more stupid. I was the, you can say, most dimag kharab 13-year-old kid you would ever meet. In 8th grade, I was really weird. Okay. उस time पे I was very, यू कैन से ना अंदर से ना मेरा वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ था जो मेरा आज की डेट में हो रखा है. उस टाइम पे आई वॉज रियली अनकॉन्फिडेंट एंड स्टफ, एंड आई हैड दिस रियली बिग प्रॉब्लम दैट आई यूज टू कीप माई सेल्फ वर्थ and my image and my you can say confidence in other people. What does that mean? That basically means that if other people think I'm good, then I'm good. If other people think I'm shitty, then I'm shitty. I used to do that. My confidence didn't come from myself, it came from other people. And when you're a 13-year-old school going child, then those other people include teachers and students, right? So us time pe all of the confidence which I had in me depended on how much my teachers like me and how much my fellow classmates like me. But mostly I was more concerned about the teachers because I really wanted to have like this good kid image in school, right? तो अब मैं बताती हूँ. 8th में what happened, my class teacher made me the monitor of the class. And अभी like when I'm 16-year-old, for me it is nothing कि भाई मॉनिटर बना दिया ये अच्छी बात है, but it's nothing more than that. But to 8th grader Vibha, to 13-year-old Vibha, that title of monitor meant everything. ठीक है, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया ही वही थी, क्योंकि मेरी सेल्फ वर्थ भी उसी टाइटल से आती थी, मेरा कॉन्फिडेंस भी वहीं से आता था, मेरा सब वहीं से आता था. मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब the only reason I used to roam around in the school with my head held high was because I had this badge here और उसमें लिखा था monitor. That's it. That's how much that meant to me. क्योंकि again I was unconfident. And why am I repeating this again and again and again कि मैं unconfident थी और उस वजह से, क्योंकि आगे जो भी मेरे actions आएंगे ना, जो भी हरकतें मैंने further करी हैं story में, they are going to sound so dumb and so stupid. इसीलिए I need to remind you again and again that I was stupid and unconfident. Okay, anyways, मैम ने मुझे मॉनिटर बनाया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. आई रिमेंबर जिस दिन मुझे बनाया था, मैं घर पे इतनी खुश होकर आई थी, मैंने पूरे घर में चिल्लाया था, गाना गाया था कि देखो मेरे को मॉनिटर बना दिया, आई एम सो हैप्पी, मेरे को मॉनिटर बना दिया, आई एम सो हैप्पी. ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड मैं अपना काम भी ना बहुत शिद्दत से करती थी, मैं मजाक नहीं कर रही. पूरी क्लास को मतलब मैं डिसिप्लिन करके रखती थी. अब मैं वही खड़ूस मॉनिटर थी कि मैं अपने दोस्तों का नाम बोर्ड पे नहीं लिखती थी, दूसरों का लिख देती थी. बट कम ऑन, एवरी चाइल्ड डज दैट. ओके, आई वाज अ चाइल्ड. एनीवेज, ठीक है, तो आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट. एंड उसमें मतलब ऑब्वियसली द क्लास डिडंट रियली लाइक मी दैट मच बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक दैट आई वाज वेरी खड़ूस, क्योंकि मैं चिल्लाती रहती थी, उन्हें डांटती रहती थी, चुप रहो, शोर मत मचाओ, मैम नहीं है तो क्या हुआ, बातें क्यों कर रहे हो, ये सारी चीजें मैं करती थी. मैं अपना जो मेरी ड्यूटी थी, मैं प्योर डेडिकेशन से करती थी, मैं मजाक नहीं कर रही. ठीक है, अब दिस इज अक्टूबर 2023. 8th ग्रेड में अक्टूबर में व्हाट हैड हैपेंड कि अ न्यू इंग्लिश टीचर हैड जॉइंड आवर स्कूल. ओके, तो लेट्स कॉल हर नोनी. तो Noni ma'am had joined our school. Her real name is not Noni. Okay, so she had joined our school. And the reason कि मैं स्टोरी इतना फ्रीली बता पा रही हूँ is because she has left school. तो मैं कायदे से बोल पा रही हूँ कि हाँ क्या हुआ था. तो वो वाली मैम आई थी एंड शी वॉज अ न्यू टीचर. ठीक है, एंड शी वॉज लाइक रियली यंग. आई थिंक दैट शी मस्ट हैव बीन इन हर 20s. तो वो आई थी, है ना. शी वॉज रियली annoying. Honestly, like her voice was very high pitched and she used to speak really loudly. तो उनकी high pitched आवाज कानों में चुभती थी. Not like I'm saying कि high pitched आवाज are bad, because मेरी खुद की भी आवाज बहुत high pitched है, और high pitched तो इतनी नहीं है, पर मैं loud बहुत हूँ. Like if you ask any of my friends, I'm like the loudest person in the group. तो that is not that bad, पर उनकी आवाज बस चुभती थी, बहुत चुभती थी. मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था, दूसरे बच्चों को बहुत फर्क पड़ता था.
And nobody in the class liked her because she was very, I mean, I get it that she was a new teacher, she didn't really have experience, it was her first time, so we need to give her some time to get settled and get used to the students and stuff. But she used to be very khadus, like very 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 khadus, like one of my friends told me the story that one time he went to ask her a doubt or something, and then she got mad at him कि जब मैंने पढ़ाया था तब तूने क्यों नहीं सुना वगैरह. So she was that kind, ठीक है, and nobody in the class liked her. Now one day she was teaching some chapter, I don't know. So she was just teaching her lesson and the whole class was talking because nobody respected her, which is actually a pretty bad thing to do. We should have respected her, but abhi aap aage sunoge, so you're going to lose respect for her too. So she was teaching some chapter, the whole class was talking, not me though. I specifically remember I wasn't talking because I really love English literature and I love to read books. So yeah, I wasn't talking, but the whole class was. So she got like really mad at the class and she started screaming कि I'm teaching over here, सब बातें कर रहे हैं, you don't have any respect for the teacher वगैरह, वही घिसा पिटा daily जो होता है. Until there was this kid, right? So this kid raised his hand and he said कि ma'am, do you know why everybody is talking? That's because आप अभी नए नए आए हो, आपको डांटना तो आता है नहीं, तो हम आपसे क्यों डरे. ऐसा करके कुछ बोल दिया. अब ये बात ऑब्वियसली उनको बहुत बुरी लग गई, बहुत ज्यादा बुरी लग गई उन टीचर को ये वाली बात, ठीक है, विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल भाई, कि आप ऐसे मुंह पे टीचर की बेइज्जती नहीं कर सकते, है ना. तो शी वाज लाइक कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट इफ आई एम न्यू, दैट मीन्स दैट यू वोंट लिसन टू मी, दैट मीन्स दैट यू वोंट रिस्पेक्ट मी, आई एम हियर बिकॉज आई नो माई सब्जेक्ट वेल, दैट इज व्हाई द स्कूल हायर्ड मी. तो जब उन्होंने बोला तो बच्चा कहता, मैम आर यू श्योर यू नो योर सब्जेक्ट वेल? And then the whole class was like, oh, and the teacher was like, bhai, what? So the whole class was laughing like a lot, ठीक है, सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, सब हंस रहे थे. I was feeling kind of bad for her तो, ठीक है, but अब उस टाइम पे ऐसा था कि अगर पूरी क्लास ही इन्वॉल्व होकर हंस रही है तो मैं अब क्या वहां पे एक वो बन के खड़ी हो जाऊंगी, गाइज वी नीड टू शट अप. आई मीन कायदे से आई शुड हैव डन दैट, कायदे से आई शुड हैव स्टॉप्ड एवरीबडी टू मेकिंग फन ऑफ दैट टीचर, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता, ठीक है. आई शुड हैव डन इट बट इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू, मैंने नहीं करा, ठीक है, मैंने नहीं करा उनको डिफेंड. बॉय मॉनिटर भी तो था, वो भी तो हंस रहा था, कुछ नहीं था, ठीक है. तो अब बच्चे की और टीचर की आर्ग्यूमेंट वहां पे चल रही है. Meanwhile, I honestly saw it as like this fun roast battle. I didn't take it as that big of a deal. I was like, हाँ हो रही है, ठीक है, रोज होती रहती है, मजा आ रहा है, मैं उस वे में थी, ठीक है. So I was talking to my friend आगे फर्स्ट बेंच पे बैठकर, एंड क्योंकि सब उनको ये चिढ़ा रहे थे कि आप अभी नए नए आए हो, आप इतने यंग हो, आपको डांटना नहीं आता, तो उनकी एज के बारे में बात हो रही थी. एंड यू नो हाउ दे से, नेवर नेवर ask a woman her age, right? I wish that someone would have told me this earlier. Me and my friend were talking about how old is the teacher gonna be. So I said that she must be between like 20-25 years old, and she said ki no, she must be between 25 and 30 years old. I was saying that she must have been in her early 20s. She was saying that no, the teacher must have been in her late 20s. And that girl, she tells me, चल मैम से पूछने चलते हैं. Oh no. Oh no, oh no, 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 no. This is, I'm cringing while telling you this story. Like 13-year-old Vibha, ew. I'm getting this embarrassment. Why am I even okay? So जब मैम हमारे साइड से जा रही थी, so me, Vibha, I was like, excuse me मैम, मैम वैसे आपकी एज क्या है? Never ask a woman her age. To every single person who is watching this video, let me just tell you, never ever ever ask a woman her age, because when I asked her her age, it did not go well. And I didn't mean it as an insult. I swear, I shapat, I did not mean it as an insult, okay? I was just genuinely curious. But she didn't understand that, and she thought that क्योंकि सभी उनका मजाक उड़ा रहे थे and उनका मूड ऑलरेडी खराब हो चुका था क्योंकि सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, she thought कि मैं भी उनका मतलब मैं मजाक उड़ाने के लिए उनको कह रही थी, मैं उनको इंसल्ट करने के लिए कह रही थी, मैं अपनी क्लास के साथ उनके मजे लेने के लिए कह रही थी. But that wasn't true, but she took it that way. But I do see why she did that. Like, I understand her perspective. But okay, so she got very pissed when I asked her that, and she was like, oh Vibha, so तुम्हें मेरी उम्र से क्या फर्क पड़ता है, I'm the goddamn teacher वगैरह करके उन्होंने मुझे सुनाया. I was like, अच्छा sorry ma'am. And फिर मैम ने पढ़ाया थोड़ा बहुत. फिर जब मैम के जाने की बारी आई, like when she was leaving the class, one of my classmates, he stood up and he said, bye auntie. So when he called her auntie, she
मतलब उनका मूड बहुत खराब हो गया था. लाइक I get it, bhai. It's her first time teaching. Not like it was her first day, but still it was her first time teaching, and we were absolutely treating her like shit, which is not good, and that is not at all acceptable. तो मुझे 13-year-old Vibha was stupid, but still she was quite empathetic. So मैम ना एकदम रोने की हालत में आ गई थी, और मैम ऐसे लाइक अपना टीयर्स वो करके जा रही है, तो आई फेल्ट बैड फॉर हर, राइट. तो मैं अपनी क्लास से बाहर निकल कर गई, एंड बाहर जाके लाइक इन द कॉरिडोर आई स्टॉप्ड her. I was like, मैम ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लास आई वांटेड टू से दैट आई एम सॉरी. ठीक है, मैम ने मुझे बोला अभी कि इट्स ओके, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स फाइन. ये करके मैम चली गई. मैंने उनको बोला, स्पेशली बोला सॉरी, और उन्होंने मुझे बोला इट्स ओके करके वो चली गई. What she did, like when she went to, अब obviously सी बात है कि हमारी क्लास की अब कंप्लेन होने वाली है, right? That's obvious. Obviously she's going to complain about us. When she went to the section head, the coordinator, the sectional in charge to complain about her our class, section in charge ने उनसे पूछा कौन है वो बच्चे जो आपका मजाक उड़ा रहे थे. मैम ने उस बच्चे का नाम नहीं लिया जिसने सबसे पहले आर्ग्यूमेंट शुरू की थी. मैम ने उस बच्चे का नाम नहीं लिया जिन्होंने उसे आंटी बुला दिया था. मैम ने मेरा नाम ले लिया. विभा ने मुझसे मेरी उम्र पूछी थी. मैं, चलो आप मेरी कंप्लेंट कर भी रहे हो तो अंडरस्टैंडेबल, उनके साथ करते मेरी कंप्लेंट, मेरी अकेले की क्यों करती? मेरी सोलो कंप्लेंट करके आई थी वो, और किसी की कंप्लेंट नहीं करी उन्होंने, सिर्फ मेरा नाम वहां पे लेकर आ गई कि विभा ने करे. भाई विभा ने मेरे से पूछ ली, मेरी उम्र पूछ ली विभा ने, वो भी तब जब मैंने जाकर उनको सॉरी भी बोला था. मैंने पूरी क्लास की तरफ से उनको कहा था कि मैम आई एम सॉरी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था. फिर भी उन्होंने जाके मेरी कंप्लेंट कर दी. क्यों? मैंने इतना कुछ करा भी नहीं था भाई, बाकी बच्चे तो कुछ ज्यादा ही कर रहे थे. मैंने तो फिर भी उस हिसाब से थोड़ा सा लिमिट में रह के करा था, बट मैम ने फिर भी मेरी कंप्लेंट कर दी. एंड मेरी क्लास टीचर के पास ये खबर गई कि विभा ने ऐसा ऐसा कर दिया, पूरे स्कूल में फैल गई, विभा ने टीचर की बेइज्जती कर दी. मैंने तो कुछ ऐसा सच करा भी नहीं था, ठीक है. तो मतलब मेरा इंटेंशन वाज नॉट उनकी बेइज्जती करना, ठीक है. अब मेरी क्लास टीचर तक बात पहुंची, तो मेरी क्लास टीचर वाज लाइक, जिस लड़की को मैंने इतना अच्छा समझा वो लड़की इतनी बदतमीज कैसे निकल गई, ठीक है. तो मेरी क्लास टीचर भाई वो हो गई कि ओ शिट भाई ये क्या हो गया. तो मेरी क्लास टीचर आई मेरे पास, मेरी क्लास टीचर कहती कि विभा हाउ डेयर यू डू दैट, ये वो, मेरे को डांट वाट पड़ी. मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने इंसल्टिंग वे में मीन नहीं करा था. टीचर मेरे को ये कह रही कि बेटा मीन तो तू कभी कुछ नहीं करती है, तेरे से हमेशा चीजें हो जाती है ना बस. मैं कह रही हूँ मैं क्या करूँ मैम, आई डोंट वांट ड्रामा इन माई लाइफ बट इट जस्ट हैपेंस. तो अब मैम मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैम ये बाकी जो बच्चे हैं इन्होंने भी ऐसा बोला था, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है. एंड मेरे से इतनी नाराज हो गई वो, उन्होंने मेरा मॉनिटर बैच छीन लिया. बोला आज से तू मॉनिटर नहीं है. मेरे लिए ये चीज इतनी बड़ी थी क्योंकि यार मैं अब इस फेज पे आ गई कि मुझे मॉनिटर या काउंसिल मेंबर के बैच से कोई फर्क नहीं पड़ता. आई मीन इट्स गुड दैट आई हैव इट, बट अगर मेरे पास नहीं भी है तो भी इट वुड मेक नो डिफरेंस इन माई लाइफ. बट उस टाइम पे दैट बैच वॉज माई एवरीथिंग, राइट. क्योंकि एक्चुअली ना द थिंग वॉज कि मेरी क्लास भी बहुत टॉक्सिक थी, बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी. मेरी क्लास में बहुत ज्यादा टॉक्सिक कॉम्पिटिशन था. सब बच्चे एक दूसरे का गला दबाने के पीछे पड़े रहते थे. सबको मतलब मेरी क्लास ऐसी थी ना कि सबको एक दूसरे को नीचा दिखाने में बहुत मजा आता था. तो मेरे साथ ये, और मेरे मजे सब लेते थे, ठीक है. क्योंकि मैं बहुत ही यू कैन से सेंसिटिव इंसान थी, तो ऑब्वियसली अगर कोई बंदा सेंसिटिव होता है तो उसके मजे लिए जाते, ठीक है. मेरे भी मजे सब बहुत लेते थे. एंड जब मेरा मॉनिटर बैच छिना, मुझे इतना गंदा चिढ़ाया गया. एक्चुअली द थिंग वाज कि मेरी देन बेस्ट फ्रेंड को ही मेरा मॉनिटर बैच दे दिया गया. इफ यू हैव वॉच्ड दिस स्टोरी टाइम देन यू वुड नो दैट आई हैड दिस बेस्ट फ्रेंड named Cactus. I have named her Cactus. Her name is not Cactus. तो बेसिकली Cactus को मेरा मॉनिटर बैच दे दिया गया एंड उसको न्यू मॉनिटर बना दिया. मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि Cactus को बना दिया, बिकॉज भाई मेरे को आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि हाँ भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड है बन गई. लेकिन मेरे से जब वो छिना मुझे उस बात का बुरा लगा, ठीक है. क्योंकि आई वॉज सो लाइक, मतलब मैं रोई, मैं बहुत ज्यादा रोई उस दिन. मैं इतना ज्यादा रोई उस दिन, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बहुत मतलब पूरी आंसू भा के मैं रो भी बहुत जल्दी जाती हूँ, बट हाँ मैं बहुत ज्यादा रोई उस दिन. एंड देन मतलब घर आने के बाद भी मेरा पूरा दिन उस दिन मूड खराब था. अगले दिन मैं स्कूल जाके अपने सारे मतलब मैं क्लास में मैं नोटबुक ही नहीं निकाल रही. मेरे दोस्त मेरे से पूछे बेटा विभा तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रही. मैं कह रही हूँ मैं क्यों पढ़ाई करूँ, अब तो मेरा मॉनिटर बैच छिन गया, अब तो मेरे पे पढ़ाई करने का तो कोई कारण ही नहीं बचा. मैं पढ़ाई करके क्या कर लूंगी, मैं नहीं कर रही पढ़ाई. मैंने अपने अगले जो मेरा सेमेस्टर था उसके एग्जाम बहुत बुरी तरीके से मेसअप करे थे, क्योंकि मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी थी, ये सोच के कि भाई मॉनिटर बैच चला गया, क्या मतलब तुम ये देख रहे हो. मुझे उस मतलब अब मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, ठीक है. तो मुझे अब इन मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई अटैचमेंट नहीं है.
उस टाइम पे सोचो, मुझे उस मॉनिटर बैच से इतनी अटैचमेंट थी कि मुझे इतना, मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उस बैच के लिए कर रही हूँ, करियर बनाने के लिए नहीं कर रही, मैं तो बैच के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, ये था। ठीक है, अब वो छिन गया, मैं बहुत मतलब हो गई। अगले 2-3 महीने तक मेरे को मेरे क्लास वालों ने इतना चिढ़ाया, इतना चिढ़ाया, इतना चिढ़ाया, मैं बता भी नहीं सकती, बहुत चिढ़ाया। मतलब दे यूज्ड टू मेक अ लॉट, आई यूज्ड टू गेट लाइक बुलीड लाइक रियली बैड। ठीक है, दे बुलीड मी अ लॉट, यू नो, दे वर लाइक कि देख तेरी ही बेस्ट फ्रेंड को दे दिया तेरा बैच, हा 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 हु। मैं डेली रोती थी, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आके मेरा एक रोने का सेशन डेली का फिक्स हो चुका था। एंड समझ लो कि मेरी मेंटल हेल्थ की कितनी बुरी स्टेट थी। मेरा सेल्फ एस्टीम, वो क्या होता है, सेल्फ एस्टीम क्या होता है, मेरा जो नॉन एक्सिस्टेंट सेल्फ एस्टीम था वो गड़ चुका था जमीन में, मेरा कॉन्फिडेंट बिखर चुका था, मेरे अंदर जीरो कॉन्फिडेंस था, जीरो। एंड मैं क्या बताऊं, मतलब आई हेटेड माई सेल्फ, आई एब्सोल्युटली हेटेड द शिट आउट ऑफ माई सेल्फ, एंड माई क्लासमेट्स मेड इट सो मच वर्स। One of such classmates, let's just name him Smiley. He used to be always smiling and laughing, which in general is a good thing, but I still hate him. Anyways, so उसको specifically बहुत मजा आता था मेरे मजे लेने में। ठीक है, I don't know why he hated me so much. Maybe he was just insecure and jealous that I was better than him, but I don't know. He just hated me a lot. ठीक है, and वो मुझे बहुत चिढ़ाता था, वो मुझे बहुत वेराइटी ऑफ चीजों के लिए चिढ़ाता था। ठीक है, वो मुझे इस बात पे चिढ़ाता था कि मैं बहुत पतली हूँ, मुझे हड्डी, स्किनी, बोनी, ज़ॉम्बी, पता नहीं क्या क्या बुलाया जाता था, स्केलेटन, गॉड नोस व्हाट, राइट। उसके अलावा मुझे इसके लिए मॉनिटर बैच के लिए तो चिढ़ाता ही था, मुझे और भी बहुत सारी अन्य चीज़ों के लिए, लाइक कभी अगर मुझे गलती से डांट पड़ गई क्लास में, कुछ मैंने करा, मान लो मैंने अपना रजिस्टर में डेट नहीं डाली, हाँ 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 भी भदेक, इसीलिए तेरा मॉनिटर बैच छिना है, हाँ 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 भी भदेक, उसका यही चलता था। ठीक है, वो मतलब ऐसा नहीं कि वो मेरे ही स्पेसिफिकली मजे लेता था, वो सभी को परेशान करता था, एवरीबडी हेटेड हिम। तो हाँ, ही वाज जस्ट दैट टाइप ऑफ किड, राइट। आई थिंक एवरी क्लास हैज दिस टाइप ऑफ किड, एटलीस्ट वन ऑफ देम, आई डोंट नो, राइट। अब एक दिन मुझे याद है, दिस वाज अराउंड जनवरी एंड फरवरी का बिगिनिंग का टाइम था, हमारे फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे। तो एग्जाम्स के पहले से नहीं, एक हफ्ते पहले से बहुत सारे बच्चे छुट्टी लेके बैठ जाते हैं पढ़ाई करने। आई वॉज नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, तो मैं स्कूल आती थी तो उस टाइम पे, लेकिन उस दिन बहुत कम बच्चे स्कूल आए थे, आई थिंक 15 या 20 बच्चे ही आए होंगे। मेरी 40 लोगों की क्लास में 15-20 बच्चे आए थे। तो अब जैसे वो 4 रोज जैसे ये होती हैं, तो यहाँ पे मैं और मेरी देन बेस्ट फ्रेंड कैक्टस, हम बैठे हैं, और हमारे एडजेसेंट, लाइक अ डिफरेंट रो बट एडजेसेंट, हमारे वो बच्चा बैठा है, स्माइली बैठा है। ठीक है, हमारे एडजेसेंट फिर स्माइली बैठा है। अब स्माइली, अब मैं और कैक्टस दोनों बैठे थे, तो स्माइली हमें सुबह से चिढ़ा था, देखो मॉनिटर और एक्स मॉनिटर साथ में बैठे हैं, मॉनिटर और एक्स मॉनिटर साथ में बैठे हैं, ऐसे ऐसे करके हमें चिढ़ा रहा था। ठीक है, मैं इग्नोर कर रही थी क्योंकि मेरे को नहीं मुंह लगना था उसकी, क्योंकि मैं प्रोबेबली रोने लग जाती अगर मैं उसे कुछ बोलती। ठीक है, मैं उसे प्रॉपर इग्नोर कर रही थी। वो बंदा मुझे सुबह से कंटिन्यूअस चिढ़ाया जा रहा था, मुझे इतना इतना, मैं 2 बार रोई। ठीक है, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मुझे फिर भी चिढ़ाया जा रहा था, है ना। एंड ही जस्ट, आई डोंट नो, वो बहुत परेशान कर रहा था, यू नो, ही यूज्ड टू टीज मी अ लॉट। एंड सुबह से सर खाए रखा था कि मतलब मेरे मन में आई हैड दिस सच अ हेवी फीलिंग इनसाइड कि मुझे था बस मैं घर जाके रोऊंगी। ठीक है, ये सोच के मैं अपना पूरा दिन गुजार रही थी। देन पूरा दिन तो ऐसे ही गया उसका चिढ़ाते चिढ़ाते। आई थिंक डिस्पर्सल का टाइम था, लास्ट पीरियड था, ऐसे ही था। मेरी क्लास टीचर सामने बैठी थी, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, पता नहीं हम हैरी पॉटर के डिस्कशंस कर रहे थे, मुझे याद नहीं हम क्या डिस्कशन करते हैं, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हम उस टाइम पे हैरी पॉटर के डिस्कशन कर रहे थे। बट हाँ, ऐसे ही कुछ तो हो रहा था। फाइनली उस बंदे ने, स्माइली ने, मुझे वापस से कुछ बोला मॉनिटर से रिलेटेड, एंड आई स्नैप्ड। मेरा जितना भी, मैं बॉटल अप करे बैठी थी अपना गुस्सा, नॉट ओनली ऑन स्माइली बट ऑन ऑल ऑफ द किड्स ऑफ माई क्लास एंड ऑन दैट टीचर नोनी। मेरा जितना भी गुस्सा था महीनों से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन अराउंड जनवरी, 3 या 4 महीनों से, मैं जो डेली घर जाके रो रही थी, मेरी जितनी भी अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी, मैंने उस पर सब निकाल दी। उसने मुझे कुछ बोला, मेरी इतनी गंदी किलसी कि मेरे आगे मैथ्स की बुक रखी थी, मैथ्स की बुक हमारी इतनी मोटी हुआ करती थी, मैंने उठाई मैथ्स की बुक, इस तरह मोड़ी, ठैच मारा उसके, सीधा मुंह पे से ठाड़ लगी उसको। आई वॉज इन डन। ठीक है, अब मेरी, जब मेरी किलसानी थोड़ी मुश्किल होती है, मुझे दुखी करना आसान है पर मुझे गुस्सा करना मुश्किल है, लेकिन जब मेरी किलस्ती है तब मेरी किलस्ती है। तो मैं उठी, फिर मैंने उसको यहाँ से पकड़ा, कॉलर से पकड़ा। ठीक है, मोटा था वो, अच्छा खासा। ठीक है, उसको हिलाना इतना आसान था नहीं, बट मैंने फिर भी पकड़ा क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। उठा के मैंने ढैच उसको जमीन पे नीचे गिरा दिया, वो गिर गया जमीन पे।
ठीक है, और वो बहुत डर गया, ठीक है। मैं सबसे ऊंची आवाज में ऐसे टोल्ड दैट आई एम लाइक अ वेरी लाउड पर्सन, बहुत ऊंची आवाज में अपना पूरा गला, अपने पूरे फेफड़ों की सारी हवा को इस्तेमाल करके एकदम हाई पिच आवाज में मैं उस पर चीख रही हूँ, अपनी टीचर की ओर इशारा करके बोल रही हूँ, मैम इसकी औकात क्या है ये मुझे कुछ बोलेगा। ऐसे नहीं चिल्ला रही थी मैं जैसे कैमरे पे चिल्ला रही हूँ, वो मेरा चिल्लाना अलग ही था। अगर मैं उस वक्त जिस वॉल्यूम से चिल्ला रही थी, अगर मैं इस वक्त ऐसे चिल्ला दूं ना, तो मेरी बिल्डिंग के ऊपर नीचे के लोग आ जाएंगे कि क्या हो गया, तो ठीक है तो ठीक है। बहुत कस के मैंने चिल्लाया कि इसकी औकात क्या है ये मुझे कुछ बोलेगा, क्या औकात है इसकी। मैंने ऐसे ऐसे शब्द भी यूज करे थे जो अभी मैं यहाँ पे नहीं यूज कर सकती। मैंने बहुत अतरंगी अतरंगी भाषाएं, बहुत प्यारे प्यारे सी भाषाएं भी यूज करी थी उसके अगेंस्ट, अपने टीचर के सामने, अपने टीचर के सामने उसको दुनिया भर के प्यारे प्यारे शब्द सुना रही थी मैं, राइट, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, बहुत सुनाया गया कि क्या औकात है इसकी, ये आज तक बन पाया मॉनिटर, इसने कुछ उखाड़ा है अपनी लाइफ में। वो 2 सब्जेक्ट में फेल भी हुआ था। मैंने कहा था खुद जो 2 सब्जेक्ट में फेल होके बैठा है, इसको करना क्या है फ्यूचर में, अपने बाप के बिजनेस में ही बैठना है इसको, और कुछ तो है नहीं इसकी बस की, वो भी डुबा देगा। पूरा चिल्ला रही हो। अब मुझे एग्जैक्टली ऑब्वियसली अब मुझे लाइन बाय लाइन नहीं याद कि मैंने बोला क्या क्या, बिकॉज आई वाज सो एंग्री। मैं सोच ही नहीं रही थी, मेरे मन में जो आ रहा था मैं बोल रही थी, क्योंकि मुझे ये था अब तो मैं सस्पेंड होकर मानूंगी, अब तो इनको मुझे सस्पेंड करना है, अब ये मुझे सस्पेंड करे, अपनी सारी अंदर से निकाल कर ही अब मैं मानूंगी, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है ना, ऐसे क्लास में जब कोई बंदा इतना पूरा है करके चिल्ला रहा होता है, तो पूरी क्लास बहुत मजे लेती है, ठीक है। एंड नॉर्मली पूरी क्लास ऐसे चिल्लाती है, ओ अरे भाई ओ वो देख ओ अरे पॉपकॉर्न का है ये। मेरी क्लास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी क्लास में एक भी बंदे ने ओ आ नहीं करा, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा रूप था, आई वॉज नॉट विभा, आई वॉज नॉट द पर्सन जिसकी वीडियो आप अभी देख रहे हो, आई वॉज समथिंग एल्स। मेरे अंदर काली माता की आत्मा आ गई थी, मेरा रौद्र रूप सामने आ गया था। मुझे क्या हो गया था मुझे नहीं पता, मैं इतनी डरावनी थी और मेरी आवाज भी इतनी होर्स हो चुकी थी और इतनी वैसी हो गई थी। मेरी क्लास में किसी बच्चे के अंदर इतना साहस नहीं आया कि वो ओ आ कर पाए। नॉट अ सिंगल चाइल्ड हूटेड और cheered because they were terrified कि मैं उनका क्या कर दूंगी। इवन मेरी टीचर, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी टीचर सामने बैठी है, टीचर के सामने इतना चिल्ला रही हूँ, पूरी हरकतें कर रही हूँ, बच्चा अभी भी वो जमीन पे पड़ा हुआ है, इतनी मैं हरकतें कर रही हूँ, उन्होंने मुझे रोका होगा, कुछ बोला होगा। वो मेरी टीचर मुझे देख के इतना डर गई, मेरी रूप को देख के, मेरी आवाज को सुन के इतना डर गई, मेरे टीचर के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ी, उन्होंने मुझे रोका ही नहीं। वो मुझे और कह रही है कि हाँ बेटा तू चिल्ला, वो बस सामने बैठ के मुझे ऐसे घूर रही है ऐसे, ठीक है, क्योंकि शी वॉज हरसेल्फ टेरिफाइड ऑफ मी। उस टाइम पे कोई भी आता मेरे टाइम पे, उस टाइम पे टेरिफाइड होता। ओ हाँ, एक छोटा सा बच्चा था, कोई ऐसे 6th या 7th क्लास का, मैम को नोटबुक देने आया था क्लास में, उसने एंटर किया, जैसे ही उसने दरवाजा खोला मैम को नोटबुक देने, उसने मुझे देखा, मैं साइड में अपना हा 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 हुआ हुआ चिल्ला रही हूँ। मुझे देख के वो इतना डर गया, कि वो मैम को नोटबुक सबमिट करे बिना ही दरवाजा बंद करके चला गया वो। एंड ऑब्वियसली मेरी टीचर मुझे बस देख रही है, मेरी टीचर ने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं प्रॉपर चिल्ला रही हूँ वहां पे। तो आसपास से इधर उधर से 2-3 सेक्शन से और टीचरें आ गई कि अरे क्या हो गया, कौन चिल्ला रहा है। उन्होंने मेरे को, जिस तरीके से मैं थी उस टाइम पे, उन्होंने मुझे देखा, उनकी भी एक बोलनी नहीं निकली मेरे सामने। 4 टीचरें मेरे आगे खड़ी थी, किसी ने मुझे नहीं रोका, और वो बच्चा वो तो इतना गंदा ट्रॉमेटाइज हुआ, वो नीचे बैठ के अभी भी बस मुझे ऐसे देख रहे हैं कि भाई इसको क्या हो गया, मैं तो ऐसे ही मजे ले रहा था इसको क्या हो गया। उसको मैंने इतना गंदा ट्रॉमेटाइज किया, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, लाइक आई एम लाइक रियली प्राउड ऑफ इट। आई एम so happy that I stood up for myself, क्योंकि you know the reason it's one of a very big deal is because as I told you, मेरे अंदर बिल्कुल भी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मेरे लिए कुछ भी ऐसा करना was a huge deal, right? क्योंकि nobody stood up for me in class, you know, कोई भी मेरे लिए साइड नहीं लेता था, मेरे लिए मेरी खुद की साइड लेना was a big deal, ठीक है। आई एम लाइक सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डूइंग दैट। एंड वो बच्चा बहुत गंदा ट्रॉमेटाइज हुआ। मैंने अपना पूरा करना बंद कर दिया, उसके बाद जब मैं थोड़ा सा मैं सांस ली, मैं नॉर्मल हुई, मैं बैठ गई, वो भी बच्चा उठ के अपनी सीट पे बैठ गया, मैं अपनी सीट पे बैठी, तो मैं ऐसे करके बैठी थी, मेरे हाथ ऐसे ठटर कांप रहे थे, मैं पूरी कांप रही थी, ठीक है। एंड उस टाइम पे जब मेरा थोड़ा हार्ट रेट नॉर्मल हुआ, जब मैं थोड़ी सी ठीक हुई, तब
मेरे अंदर एकदम से रियलाइजेशन किक इन करी कि शिट ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मेरे जिस टाइप के पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और अगर उनको अतरंगी अतरंगी भाषा पता चली जो मैंने उस टाइम पे इस्तेमाल करी थी, आई वुड हैव बीन स्क्रूड, राइट। वो बात अलग है कि मैंने बाद में जाकर उनको खुद ही बता दिया था कि मैंने क्या करा है, पर फिर भी ठीक है। तो आई वाज लाइक अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब तो ये मुझे सस्पेंड कर देंगे। अब मैं वहां पे बैठ के ऐसे बैठी हूँ, मेरी टीचर ने मुझे कुछ नहीं बोला, मेरी टीचर जो अपना काम कर रही थी वापस उसी काम पे लग गई। तो मैं एक दो बच्चे जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरे एक दो दोस्त हैं, वो आए, उन्होंने मुझे पानी वानी दिया, बोला अरे विभा पानी पी ले यार, काम डाउन यार, ठीक है ठीक है। उस वो जो बच्चा जिसको मैंने ट्रॉमेटाइज कर दिया, उसके भी पास दो चार लोग गए कि अरे इट्स ओके भाई, काम डाउन नहीं है, वो हुआ ये सब हुआ, ठीक है। ये सब हुआ, मैं घर गई, मुझे पता चला मेरी टीचर ने मेरी कोई कंप्लेंट नहीं करी, ना ही किसी सीनियर टीचर से करी, ना ही मेरे घर पे कोई कंप्लेंट गई। मैंने जाके अपनी मम्मी को खुद ही बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे करके आई हूँ, मैंने उस बच्चे पे चिल्लाया है, मैंने उसको ये बोला है। एंड माय मदर शी वाज लाइक गर्ल slay queen, like she was so happy on what I did, she was happy that I stood up for myself. She also called my class teacher then, and मेरी क्लास टीचर ने बोला कि विभा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि जब वो बच्चा विभा को महीनों से परेशान कर रहा है तब आपने कुछ नहीं करा, आज मेरी लड़की ने एक बार चिल्ला दिया तो भाई पूरा क्या दुनिया खत्म हो गई। तो ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये हुआ बेसिकली, हाँ। एंड देन उसके बाद उस बच्चे ने भी स्कूल छोड़ दिया। तो आई डोंट नो उसने किस रीजन की वजह से स्कूल छोड़ा, बट हाँ उसने भी स्कूल छोड़ दिया। फिर 9th क्लास आई, एंड 9th क्लास में एक बार ऐसे ही कोई बच्चा मुझे किसी बात पे चिढ़ा रहा था, तो दूसरे ने बोला कि यार रहने दो इसको, कुछ मत बोल, ये ना तेरा स्माइली बना देगी, इसका नाम स्माइली रखे है ना, ये ना तेरा स्माइली बना देगी, इसे कुछ मत बोल। तो ऐसे करके ना मेरे को सबने चिढ़ाना बंद कर दिया उस दिन से। लाइक मेरे को किसी ने कभी नहीं चिढ़ाया मॉनिटर के लिए उस दिन के बाद से। सो या that is the story on how I asked a woman her age and ended up traumatizing a kid. So see you in the next one. Bye bye.